امیر اہل سنت نے اس کے جواب میں کربلا کا خونی منظر بیان فرمایا اور بتایا کہ شہدائے کربلا نے میدان کربلا میں جو ظلم و برداشت کیے، جو ستم اٹھائے، یہ سب نیکی کی دعوت دینے کے سبب ہی تو تھے۔ لہذا جب بھی نیکی کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ آئے تو امام حسین اور آپ کے رفقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ڈھائے گئے یزیدی ظلم و ستم کا تصور باندھ لیجیے، انشاءاللہ ہمت و حوصلہ نصیب ہوگا اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ نیکی کی دعوت عام کرنا ایک مسلمان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ کربلا کے واقعے سے نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملتا ہے اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کے سامنے استقامت کا پہاڑ بننے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں یا طنز کے زہریلے تیر چلیں، ان کا جم کر سامنا کرنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ اپنے اشعار میں کتنی پیاری نصیحت فرماتے ہیں۔ رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا، پیارے مبلغ معمولی سے مشکل سے پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کر دیا۔ ایک غیر مسلم تھا، اس پر وہ ظلم و ستم ہوئے، وہ کہتا ہے میں نے 20 سال تک جیل کاٹی، ناحق ظلم برداشت کیے، ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں ظالم کے سامنے جھک جاتا ہوں، پھر اچانک مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا واقعہ یاد آیا، بس اسی سے مجھے حوصلہ ملا اور میں ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک اور غیر مسلم کہتا ہے کربلا وہ واحد جنگ ہے جس نے شہادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو اخلاقی سبق بھی عطا کیا ہے۔ عاشق رسول یہ غیر مسلم ہیں جو کربلا سے سبق سیکھ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بے مثال استقامت کو یاد کر کے حوصلے بلند کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، ایک درس بھی ہے، ایک سبق بھی ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں زندگی کے اصول بھی بتاتا ہے اور شان سے جینا بھی سکھاتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک اسلام پہ کہتے ہیں کہ میں بی اے پڑھتا تھا، بی اے کی انگلش میں ایک ناول پڑھایا جاتا ہے، ایک ٹیچر نے اس ناول کے متعلق بتایا، کہنے لگا اس ناول کا مصنف ایک یورپین مفکر ہے، دوسری عالمی جنگ میں یہ ایک فوجی کے طور پر شریک ہوا تھا، دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں جو انقلاب آیا، یورپ میں جو ترقی کی، اس انقلاب اور ترقی کی بنیاد جن نظریات پر تھی، وہ نظریات پیش کرنے والے مفکرین میں ایک مفکر اس ناول کا مصنف بھی ہے۔ مصنف اس ناول میں اپنے مخصوص انداز میں کامیابی کے اصول اور ناکامی کے اسباب بیان کیے ہیں۔ پھر ٹیچر نے اس ناول کے متعلق لیکچر شروع کیا۔ مصنف کہتا ہے اگر ہم نے زندگی کے سفر میں کامیاب ہونا ہے اس کے لیے صبر اور برداشت کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں کامیابی کے لیے تحمل مزاج یعنی قوت برداشت ہونے والا ہونا چاہیے۔ کامیابی کے لیے ہم دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہمیں خود پر اعتماد کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ خود اعتمادی سے بھی بچنا ہوگا۔ اسلامی بھائی کہتے ہیں ٹیچر ناول کی سٹوری سے ملنے والے سبق بتا رہے تھے اور میرے ذہن میں واقعہ کربلا چل رہا تھا۔ جیسے ہی ٹیچر نے اپنا لیکچر ختم کیا تو میں یہ سب تبور اٹھا، سر یہ سب کچھ تو ہمیں کربلا بھی سکھاتی ہے، جو آپ بیان کریں یہ ساری چیزیں کربلا ہمیں سکھاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں صرف صبر بتایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ علم، بردباری، قوت برداشت، خود اعتمادی وغیرہ یہ سب وہ باتیں ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر اگرچہ نہیں دی مگر کر کے ضرور دکھائی ہیں۔ میری یہ بات سن کر ٹیچر حیرت میں پڑ گئے، پھر کچھ دیر بعد بولے ہاں واقعی یورپین مفکر نے ہمیں کہانی لکھ کر سمجھایا مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح ایک غیر مسلم مفکر ہے، اس نے اپنے طور پر ایک تجزیہ کیا اور کہا زندگی میں کامیابی کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 بھوک برداشت کرنے کی طاقت رکھنا، نمبر 2 انتظار کرنا، نمبر 3 سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا ہونا۔ یہ 3 اصول ہے غیر مسلم مفکر نے بیان کیے، ذرا ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھ کر واقعہ کربلا کو ذہن میں لائیے۔ کربلا میں ہمیں یہ تینوں باتیں ملتی ہیں۔ غیر مسلم مفکر نے کہا کامیابی کے لیے بھوک برداشت کرنے کی طاقت ضروری ہے۔ میدان کربلا میں ہم دیکھتے ہیں سخت گرمی ہے، ریگستان ہے، دہتی زمین ہے اور دن کی سخت بھوک پیاس ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ننھے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب پیاسے ہیں۔ خالی پیاس ہوتی تو اور بات تھی، یہاں حالات پیاس میں جنگ بھی ہے، اپنی طرف سے جنگ کرنے کا ارادہ بھی نہیں، اللہ رسول کے اطاعت سے سب کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت موجود ہے، اختیار بھی ہے، کر سکتے تھے مگر قربان جائیں، سخت پیاس بھی
इन बुलंद रुतबा हस्तियों के पाँव उखाड़ नहीं पाती। ताज़ा दाम यजीदी लश्करों की यलगार इन्हें राह हक से हटा नहीं सकती। आले रसूल के शेर सिफत जवान सख्त प्यास के बावजूद यजीदियों के पर्चे उड़ाते रहे। ये उनके बेमिसाल इस्तिकामत और बाकमाल कुव्वत बर्दाश्त है। ये प्यासे रहकर बहादुरी के जोहर दिखाते हुए शहादत को तो गले से लगा लेते हैं, मगर हक बात से ज़रा बराबर भी पीछे हटते नहीं। नंबर 2, दूसरी बात कही कि कामयाबी के लिए इंतज़ार ज़रूरी है। यानी जो बंदा कामयाबी का तलबगार है वो सब्र से काम ले, इत्मीनान के साथ दुरुस्त वक्त का इंतज़ार करे, किसी लम्हे भी बेसब्री ना दिखाए। ये बात भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की पकीज़ सीरत में देखिए। इंसान पर ज़िंदगी में दुख आते हैं, गम आते हैं, लेकिन अगर दुख और गम की खबर पहले से मिल जाए तो वो गम सिर्फ गम नहीं रहता बल्कि वबाल जान बन जाता है। मिसाल के तौर पर हम में से हर एक को मौत आनी है। अगर किसी को पहले से बता दिया जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बाकी है, अगले दिन तुम्हें मौत आ जाएगी, तो शायद वो एक दिन भी हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। चेहरे पर मायूसी फैल जाएगी, दिल गाम में डूब जाएगा, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करेगा, मगर कुर्बान जाएं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र इस्तिकामत पर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है, साथ ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम शहादत की खबर लेकर हाजिर हो जाते हैं। अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 55 है, आपकी शहादत की खबरें मशहूर हो चुकी हैं। आपने 55 साल जिंदगी करबला की होश रुबात तकलीफों को सामने रखते हुए गुजार दी। आप जानते थे कि करबला के मैदान में शकी और बदबख्त लोग इंतहाई ज़ालिमाना आज़ाद मुझे शहीद कर देंगे, मगर मजाल है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्तिकामत में कमी आई हो। 55 साल हमारा ज़िंदगी में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेसब्री का मुजाहरा किया हो। आपने कभी भी ये दुआ नहीं की, या अल्लाह पाक मुझे इस आज़माइश से निजात अता फरमा। आपने सब्र और इस्तिकामत के साथ 55 साल ज़िंदगी करबला के इंतज़ार बसर फरमाई और गिलाखिर मैदान करबला में अपने नाना जान रहमत रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर पहरा देते हुए निहायत इज्जत और शान के साथ रुतबा शहादत को सीने से लगा लिया। जान लुटाना जान देना कोई तुमसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा आए खानदान अहले बैत। और मुफक्किर ने तीसरी बात कही कि कामयाबी का तलबगार उसके लिए ज़रूरी है कि वो सोचने और समझने की सलाहियत रखता हो, यानी उस पर कैसे ही कड़ा वक्त क्यों ना हो, वो अपने सोचने समझने की सलाहियत को मार ना पड़ने दें। हर वक्त हर हाल में सोच समझ कर बेहतर से बेहतरीन फैसला करें। ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे यहाँ किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसके अहल खाना को वालिदैन को बहुत संभाल कर तरीके से खबर देनी होती है कि कहीं अचानक गम की खबर सुनकर बेहोश न हो जाएं। मगर कुर्बान जाए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की हिम्मत और हौसले की क्या शान है। आप हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलाशा मुबारक हाथों पर उठाते हैं, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला कलाशा मुबारक उठाते हैं। भाई भतीजे भांजे 72 तन मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आंखों के सामने शहीद होते हैं। आप खुद उनके मुबारक लाशें उठाकर खैमों के पास जाते हैं। ऐसे गम और परेशानी के बावजूद होश व हवास सलामत हैं, फैसला करने की ताकत बहाल है। तारीख की किसी किताब से दुनिया का कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में गम की शिद्दत के सबब कोई एक फैसला भी शरीयत के खिलाफ किया हो। नहीं, गम की आंधियाँ चल रही हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और नवासे रसूल कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे हुए हर कदम ऐन शरीयत के मुताबिक उठाते हैं। आखिर शहादत को सीने से लगा लेते हैं, मगर आपकी हिम्मत और हौसले में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आती। रसूल ये सब बातें अर्ज करने का मकसद ये है कि देखिए आज के मुफक्किरीन कामयाबी तरक्की और इनकलाब के जो रास्ते दिखाते हैं और लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, ये सब बातें आज से तकरीबन 1382 साल पहले शहजादा कौनैन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करके दिखा चुके हैं। मैदान करबला में ये सब नज़रियात मौजूद हैं। आयाशकान रसूल हमने सुना करबला एक तर्स ज़िंदगी है। आज के मुफक्किरीन जो नज़रियात बयान करके अपनी दुकान चमकाते हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब कुछ हमें पहले से मैदान करबला में करके दिखा चुके हैं। अब हमने गौर ये करना है कि क्या हमने भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करबला से कोई सीखा है या नहीं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलंद रुतबा हस्ती हैं। यकीनन हर आशिक रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत भी करता है, खुद को हुसैनी भी कहता है और अपने हुसैनी होने पर फ़ख्र भी करता है। बिला शुबा हुसैनी होना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
से मोहब्बत और अकीदत रखना बहुत बड़ी सआदत है। मगर बहुत अफसोसनाक बात यह है कि लोगों की एक भारी तादाद है जो सिर्फ मुहर्रम और हराम में, वो भी फ़कत दीनी इज्तिमाआत में, और यहाँ भी माज़ ज़बानी कलामी हुसैनी होते हैं। हम गौर करें कि हम वाकई हुसैनी हैं, कि हम घर में भी हुसैनी हैं, कि गली महल्ले में, दुकान पर, कारोबार करते हुए, दफ्तर में, दोस्तों की महफिल में क्या हम हुसैनी होते हैं? जैसे अखलाक, जैसे किरदार, जैसी पकीज़ा आदात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी, क्या हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैरवी में वैसे अखलाक और वैसा किरदार, उन जैसी आदात अपनाने की कोशिश करते हैं? इल्म दीन का वो मुबारक समंदर जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में मुजज़म था, क्या हम वो इल्म सीखने की तरफ बढ़ते हैं? हम दीनी इज्तिमाआत में आकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत के नारे लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर जब हम घर जाकर अपने बाल बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, इन्हें टीवी चला कर देते हैं, क्या हमने कभी गौर किया कि इस मोबाइल और इस टीवी के ज़रिए कि हम अपने बच्चों को हुसैनियत दे रहे हैं? हमारा बच्चा जब कंधों पर किताबों का बस्तर डालकर पढ़ने जाता है, क्या हमने कभी सोचा कि इन किताबों के अंदर हुसैनियत मौजूद है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को मानते हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, खुद को हुसैनी भी कहते हैं और इस पर फ़ख्र भी करते हैं। मगर अफसोस हम करबला से सबक हासिल नहीं करते, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नक्शे सीरत पर चलने की कोशिश नहीं करते। हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारे तौर तरीके हमारे हुसैनी होने की गवाही नहीं होते। आप ही तो कलमा तैयबा के ठहरे पासबां, आपके सारे ही बकाए दीन का सेहरा है हुसैन। हम तो सच्चा इश्क भी तुमसे नहीं कर पाए हैं और तुमने हम सभी को खून दे डाला है इमाम हुसैन। मीठे और प्यारे सलाम भाइयों, गौर कीजिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों पेश की? यकीनन आपको ताज तख्त और हुकूमत से कोई सरोकार नहीं था। आप तो जनती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह पाक की अताअत है, जिसको जन्नत में हुकूमत और सरदारी मिली हो उसे दुनिया की आर्ज़ी हुकूमत की हिर्स भला कैसे हो सकती थी? मगर गौरतलब बात है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिर यजीद की बैत क्यों नहीं करते थे? कि आपको यजीद की ज़ात से इख्तिलाफ था? नहीं, आपको यजीद की ज़ात से इख्तिलाफ नहीं था, आपको यजीद के किरदार से इख्तिलाफ था। अगर यजीद बदबख्त का किरदार सुथरा होता, वो बदअंजाम कुरान और सुन्नत को पैराकार होता, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरगिज़ इसकी बैत से इनकार ना फरमाते। मगर इस बदबख्त का किरदार अच्छा नहीं था, उसका अखलाक अच्छा नहीं था, उसकी आदतें बुरी थी। यजीद फासिक था, फाजिर था, जानी था, शराबी था। यजीद कुरान और सुन्नत की मुखालफत करता था, इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बैत नहीं की और ऐसी लाजवाल कुर्बानी पेश फरमा दी। अब ज़रा गौर फरमाएं, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के बुरे किरदार से खुश ना हुए, तो अगर वही किरदार हमारा भी हो, जो आते यजीद की थी वैसी आते हमारी हों, जैसा गंदा अखलाक यजीद का था वैसा ही हमारा भी हो, तो क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमसे खुश हो जाएंगे? आइए देखते हैं यजीद का किरदार कैसा था। यजीद पलीद की वो कौन सी गलीज़ आदतें थी जिनकी वजह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बैत करना गवारा ना फरमाया। हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन जो हमारे काम हैं वो यजीदियों जैसे हैं। सुनते हैं कि यजीद कैसा शख्स था, क्या यजीद और हमारे कामों के अंदर कोई फ़र्क है? क्या हमने वो गुनाह शुरू नहीं किए? गैब जानने वाले आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सुन्नत को बदलने वाला पहला शख्स बनु उमैया से होगा, उसे यजीद कहा जाएगा। मालूम हुआ यजीद सुन्नत को बदलने वाला, खिलाफ सुन्नत कामों को रिवाज देने वाला था। ये बात खुद भी सुन्नत मुस्तफ़ा की पैरवी नहीं करता था और दूसरों को भी खिलाफ सुन्नत कामों पर उभारता था। अब हम ज़रा गौर करें अपने ऊपर, हम कितनी सुन्नतों पर अमल करते हैं? क्या हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक है? क्या हमारा अंदाज़ ज़िंदगी, हमारा उठना बैठना, चलने फिरने का अंदाज़, हमारा चेहरा, हमारे तौर तरीके, हमारी रसूमात, क्या ये सब कोई सुन्नत के मुताबिक हैं? हमारे माशरे में जब कोई सुन्नत पर अमल करता है तो लोग उसे जली कटी बातें नहीं सुनाते। सर पर इमामत सजाने, चेहरे पर दाढ़ी रखने, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनने वाले पर उंगलियां नहीं उठाई जाती। क्या उस आशिक सुन्नत पर तंज के तीर नहीं चलाए जाते? अफसोस, आप भी मुसलमानों की एक तादाद है जो खुद तो राय सुन्नत से दूर ही हैं, इसके साथ साथ सुन्नतों पर अमल करने वालों को तिरछी निगाहों से देखते हैं।